Okay. Hello, good evening, ma'am. Good evening. My name is Akshay Gupta. Today I have got the opportunity to ask you a bunch of questions on behalf of the Responsible Youth Organization. Right. Okay, ma'am. So, acknowledging the Responsible Youth audience, we are here with Shrushti Jayant Deshmukh, ma'am, IAS 2019 MP cadre, ranked 5th in IAS 2018. Union Public Service Commission, Civil Services Examination 2018. So, ma'am, you can ask your questions in the comment section. Ma'am, moving on to our first question. Yes. Hello. Yes. Ma'am, moving on to our first question. Ma'am, am I audible? Yes, you are. Please go on. Yes, ma'am. मैम मैंने आपके बारे में सुना है कि आपने बचपन से ही सोच लिया था कि आपको आईएएस ही बनना है, तो आपने ये थ्रू आउट मोटिवेशन कैसे मेंटेन करके रखा? Okay, yes. तो बचपन से सोचा तो था बचपन में that I have to become an IAS officer. लेकिन at that point I was not sure about which exam do I have to give, how do I have to prepare everything. It was only when I came into my college, जब मैं college में आई and I started thinking कि exactly आगे मुझे क्या करना है, then I zeroed in that civil service is something which I should be doing. I should be setting my goal into. So, but yeah, this having a dream, having a goal, and I always, if you know that there is something that you want to achieve in your life, आप उसकी तरफ एक proper strategy, एक proper plan के साथ बढ़ सकते हैं. तो पहला basic चीज यही है that you have a goal in your life and you have that dream. So you decide that. That is the first step. ओके मैम. तो मैम आपने केमिकल इंजीनियरिंग करी है और Yes. देन आपने यूपीएससी में ऑप्शनल सोशियोलॉजी लिया था. Right. मैम ये कैसे मतलब चेंज? हाँ, yes. तो when I was contemplating that मैं कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करूँ, तो केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो सिविल सर्विस में एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है. ये फॉरेस्ट सर्विस में है. जो फॉरेस्ट सर्विस के लिए जो अप्लाई करते हैं उनके लिए केमिकल इंजीनियरिंग इज एन ऑप्शनल, बट सिविल सर्विस के लिए नहीं था. तो दैट वाज कट आउट. सो देन आई हैड टू सी कि और कौन से सब्जेक्ट मैं ले सकती हूँ. So I was confused between political science and sociology because both of those things interested me a lot. So फिर I read the basic NCERTs of the same. I read the basic NCERT books of both the subjects. एक वीक तक मैंने उसके और कुछ थोड़ा और रीडिंग की उसके बारे में. उसके बाद I went through the previous year question papers of both the subjects and I looked through the syllabus of it. And finally I zeroed in that sociology is something which interests me more. तो मुझे लगता है that first and foremost criteria for selecting an optional should be that it should interest you, because आपको masters level तक पढ़ना पड़ेगा अगर आप humanities का लेते हैं तो. And तो a deep interest has to be there in the subject. Second criteria can be availability of guidance and books etc. So that should be the second criteria. ऐसा करके when I zeroed in, so I had to switch from my graduation field to another subject. So, but I was able to do it because of sociology ka there's nice. enough guidance available. So that is why I was able to do it. ओके. तो मैम आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रही? मतलब जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि मेंस से शुरुआत करनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि पहले प्री की तैयारी कर लो, प्री निकले तो मेंस की तैयारी करें. तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही? क्या आपने शुरुआत से नोट्स वगैरह मेंस के हिसाब से बनाए थे, वैसी शुरुआत किया था? Okay, when I talk about preparation, मुझे लगता है कि प्री और मेंस और ऐसे बिल्कुल कंपार्टमेंटलाइज अलग अलग करके हम प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं. सो इट्स मोर इम्पोर्टेंट दैट जब आप शुरू करें इस एग्जाम की प्रिपरेशन, तो डोंट थिंक कि मैं प्री के लिए पढ़ रहा हूँ या मेंस के लिए पढ़ रही हूँ. आप एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन शुरू करिए, है ना. तो बेसिक है, जैसे यू स्टार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, यू स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज. डू नॉट डिवाइड योर प्रिपरेशन फ्रॉम द फर्स्ट डे, क्योंकि मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा है. उसका एक सबसेट होता है हमारा प्री का सिलेबस. लेकिन दोनों एग्जाम का जो ओरिएंटेशन है
वो अलग है, बिकॉज प्री में यू हैव द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू, आपको एक चूज करना है, एंड दिस इज ऑब्जेक्टिव, एंड मेंस में आपको प्रॉपरली 2 पेजेस और 3 पेजेस ऐसे करके डिटेल में आंसर लिखना है। ओरिएंटेशन ऑफ बोथ द एग्जाम्स इज डिफरेंट। लेकिन तो क्या कर सकते हैं आप, उस जो पर्टिकुलर आपका स्टेज है, जैसे प्री का स्टेज है या मेंस का स्टेज है, उसके 2-3 मंथ्स पहले आप अपना कंप्लीट डेडिकेटेड उसके लिए हो सकते हैं। लेकिन व्हेन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन, तब आप अपने प्रिपरेशन को डिवाइड ना करें, डोंट डिवाइड इट इनटू प्री और मेंस, डू एन इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। एवरी वीक आप कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आप डेली, जैसे अगर आप 2-3 महीने पढ़ लिए हैं, तो आप फिर डेली 1-2-3 आंसर्स भी लिख सकते हैं मेंस के लिए। तो दोनों को साथ में लेके चलिए इनिशियली। ओके मैम, मूविंग ऑन। आप जैसे 6-7, मिनिमम 6-7, वैसे तो काफी मतलब डेडिकेटेड आवर्स ऑफ स्टडी देने पड़ते हैं इस चीज के लिए। तो मैम आपकी साथ साथ में इंजीनियरिंग भी चल रही थी, और आपने यस। 2018 में ही यूपीएससी भी क्लियर कर लिया जब आप पास आउट मतलब हुए। तो आपने दोनों चीजें एक साथ कैसे मैनेज करी? ये काफी टफ रहा, बिकॉज कॉलेज में मैं थी तब, कॉलेज के लिए भी अटेंडेंस का भी एक रहता सिटी था में दैट यू तो। हैव टू अटेंड। यस, आई एम फ्रॉम LNCT भोपाल, and I am being interviewed by a person from RGPV University, so obviously I know that आपको ओरिएंटेशन पता होगा हमारे यहाँ के कॉलेजेस में, तो मुझे एलएन सिटी अटेंड का तो मैम उसका भी। खास कर उनका एक बिल्कुल, स्टैंडर्ड ही अलग रहता है, मतलब वो पहुंच जाती है मार्कशीट अगर अपन बिल्कुल। तो हल्का फुल्का भी। लॉट ऑफ थिंग्स उससे इम्पैक्ट होते हैं, तो मुझे वो भी साथ में देखना पड़ा, बट कैसे मैनेज किया, तो 2-3 चीजें मैं बताती हूँ। पहली चीज तो ये दैट प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर आप प्लानिंग अच्छे से नहीं करते हैं कि हमें इतना चैप्टर्स या इतने सब्जेक्ट्स कितने दिन में या कितने महीनों में करने हैं, तो पूरा रैंडमाइज्ड हो जाता है हमारा प्रिपरेशन। तो दैट इज वेरी फेटल फॉर आर मतलब सक्सेस। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले अच्छे से प्लान करें। यू शुड प्लान कि हाउ मेनी, यू शुड हैव अ माइक्रो प्लान कि मैं एक वीक में क्या कवर करने वाला हूँ। यू शुड हैव अ मैक्रो प्लान, जैसे कि 1 महीने या 2 महीने में क्या करने वाला हूँ। इस तरीके के प्लानिंग पहले जरूरी है। दूसरी चीज क्या होता है, जब आप किसी और चीज के साथ, जैसे आप जॉब या फिर आप कॉलेज, इसके साथ प्रिपेयर करते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट? क्योंकि हमारे दिन का एक निश्चित समय हम कॉलेज या जॉब में देंगे, तो अब हमें ये हम्म। करना है कि जो हमारा टाइम बचता है, उसको हमें बेहतर से बेहतर तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना है, स्क्वीज आउट करना है। जैसे एग्जाम्पल लिख देती हूँ, जैसे मुझे घर से कॉलेज पहुंचने में 1 घंटा करीब लगता था, 45 minutes to हम्म। 1 hour I used to take. तो आई मेड श्योर दैट जाते टाइम एंड आते टाइम मेरा न्यूज़पेपर रीडिंग हो जाए। So I used to read the newspaper half while I went, and remaining editorials I used to read when I used to come back. तो ट्रैवल में मेरा न्यूज़पेपर कवर हो जाता था। ऐसा करके इन बिटवीन द क्लासेस, फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज सम फ्री पीरियड, सम फ्री टाइम, तो उसको वेस्ट नहीं करना है। वी हैव अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम जो आप कॉलेज में इधर देंगे आपके लाइफ का। तो उस टाइम का एवरी मिनट एवरी सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो डिसिप्लिन थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा, और टाइम स्क्वीज आउट करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, है ना? रूटीन बनाना पड़े। एंड थर्ड थिंग, जैसे मैं आती हूँ रूटीन, मेकिंग अ रूटीन, मेकिंग अ प्लान फॉर द डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा कहती हूँ और फिर से कहूंगी, डू नॉट स्लीप विदाउट मेकिंग अ प्लान फॉर टुमारो। वॉट वी डू इज दैट हम उठते हैं एंड देन वी डिसाइड कि चलो देखते हैं आज क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ने का मन कर रहा है। वैसा बिल्कुल भी नहीं करना। बिफोर यूर स्लीपिंग एक छोटे से पेज पे आई यूज टू जस्ट राइट डाउन दैट इतने से इतने टाइम तक आई डू दिस, इतने से इतने टाइम तक आई डू दैट, एंड उसके बाद ही आप देन ओनली देन यू स्लीप। तो दूसरे दिन जब आप उठते हैं, यू हैव अ रेडी नोट, टू डू लिस्ट कि मुझे आज कैसे आई हैव टू मूव अबाउट। तो आपका जो मूड और स्विंग्स और ये सारी चीजें, दे डोंट टेक ओवर, दैट्स द बेस्ट पार्ट। सो planning in advance, time management, and third again, routinizing your entire day. ओके मैम। ऑडियंस से क्वेश्चन था मैम कि क्या बोलते हैं, आपने द हिंदू न्यूज़पेपर तो रीड किया होगा, तो वो किस Yes. तरीके से Okay, yes. न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, ये काफी हमको शुरू यस में मैम, बहुत ये डाउट ऑडियंस रहता है का कि काफी कैसे रिस्पॉन्स आया। कैसे हाउ डू वी मूव अबाउट बाय इट। पहले तो मैं एकदम शुरू से बताती हूँ, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द हिंदू, आपको सच में शुरू में यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ सेंस आउट ऑफ इट, even if entire of your education has been in English medium,
that is there because of the complex words that are used sometimes. तो शुरू में have patience, that's the first I'll say. Have patience, you'll get to know. धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो. Focus also on the editorial part, right? क्योंकि जो आपका thought process develop होगा, जो issues के around comments या opinions होते हैं, वो ज्यादातर आपको editorials में मिलेंगे, right? तो focus on the editorials. When you start reading the editorials, you will find that कुछ words हैं जो काफी कॉम्प्लेक्स है, नहीं समझ में आ रहे. तो आई यूज्ड टू टेक अ डिक्शनरी, वहीं पे खोल लिया, मोबाइल में यू कैन डाउनलोड अ ऐप, वहीं पे यू शुड सी, राइट इट डाउन देन एंड देयर कि एग्जैक्टली इसका क्या मीनिंग है. chances are that again आप फिर से you'll come across the same word in days to come. तो ऐसा करके धीरे धीरे अपना vocab डेवलप करो. This is about starting to read. Now when you do newspaper reading, I personally used to make my notes from the newspaper. We have a lot of sources online जहाँ पे you will get कि पूरे notes का हमें सब मिल जाता है newspaper का. But मुझे personally ऐसा लगता था that if I write down something with my own hands, तो वो एक बार मेरा mind process कर लेता है, तो I can remember that better. तो मैं क्या करती थी कि न्यूज़पेपर का एटलीस्ट एडिटोरियल सेक्शन को मैं उसके थोड़े नोट्स बना लेती थी इफ आई फाउंड कि वो इशू या टॉपिक इम्पोर्टेंट है, राइट? तो जैसे अभी कोविड है, उससे रिलेटेड कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट पे या वैक्सीन पे, बायोटेक पे, देयर सम गुड ओपिनियन, गुड आर्गुमेंट यू फाइंड न्यूज़पेपर में, तो यू शुड राइट इट डाउन इन योर कॉपी सेपरेटली. वंस यू राइट इट, उससे थोड़ा आपका रिमेम्बरिंग और उसका कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है. इनिशियली एक और जब आप रीडिंग करेंगे न्यूज़पेपर की, तो यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल यू विल टेक अराउंड 2 to 3 hours. तो आपको लगेगा कि इतना टाइम तो मेरा न्यूज़पेपर में ही जा रहा है, अब मैं आगे और क्या पढ़ूंगी. तो मैम फिर लगता है आई विल से ऐसा लगता है कि 2 to 3 hours तो मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग में ही जा रहा है, और यस, इसके बाद अगर अपन उसको राइट डाउन भी करेंगे तो हाँ, मतलब पूरे जितने दिन के और टाइम स्टडी चला आवर्स जाए. अपन निकाल के रखे हैं वो पूरे करेक्ट, केवल न्यूज़पेपर करेक्ट. में ही. यस, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि शुरू में तो यू विल टेक टाइम, तो जस्ट कीप रीडिंग इट एंड कोई समरी पढ़ लो न्यूज़पेपर की ऑनलाइन. धीरे धीरे जब आप पकड़ बना लोगे न्यूज़पेपर में, तो अराउंड 45 minutes तक आप कंप्लीट कर लोगे. 45 minutes to 1 hour में यू विल बी एबल टू कंप्लीट द रीडिंग पार्ट. साथ साथ में यू कैन जॉट डाउन. आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीट आपको आर्टिकल का बिल्कुल कॉपी करके वर्ड टू वर्ड लिखना है, नहीं. कुछ इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट, कोई अच्छा डेटा, कोई फैक्ट, कोई कंपैरिजन, कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट, ऐसी कोई चीज अगर आपको उस आर्टिकल में या न्यूज आर्टिकल में मिलती है या उस एडिटोरियल में मिलती है, उसको आप नोट डाउन कर लो. एंड दैट यू शुड कीप इन योर कॉपी, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट, राइट? तो सारी चीज नोट डाउन नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आर्ग्यूमेंट्स नोट डाउन करने हैं. एंड धीरे धीरे योर स्पीड विल इम्प्रूव. इसको ना करने के लिए कोई भी चीज को टाइम जब आप करते हो, तो ये हर बार आएगी. न्यूज़पेपर रीडिंग में टाइम का इशू आएगा. व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, आप लिख नहीं पाएंगे आंसर्स 10 मिनट में. पहले आप आधा घंटा, 1 घंटा लेंगे एक आंसर के लिए, मैं भी लेती थी. तो धीरे क्या करो, एक स्टॉप वॉच रख लो, टाइम रख लो कि नहीं, मैं इतने घंटे में मुझे खत्म करना ही है. बार बार उसको देखते रहो. तो धीरे धीरे यू विल गेट इन टू अ साइकिल जब आप 1 to 1.5 hour में कंप्लीट कर पाओगे विद जॉटिंग डाउन. तो दैट यू विल डेवलप ओवर टाइम. ओके मैम, तो जैसे अपन इतनी पढ़ाई करते हैं और आपने तो कॉलेज भी साथ साथ में मैनेज किया है, तो मेंटल स्ट्रेस तो मतलब थोड़े कुछ लेवल तक तो होता ही होगा. तो आपके लिए किसी चीज ने स्ट्रेस बस्टर, स्ट्रेस रिलीफ काइंड ऑफ वर्क किया हो? Absolutely. See, stress is something which we think कि बहुत मुझे बहुत डिफरेंट हो रहा है, मैं फील कर रही हूँ ये प्रेशर, आई एम अलोन और मैं बहुत लोनली हूँ, इस तरीके के थॉट्स आते हैं व्हेन यू प्रिपेयर. बिकॉज ऑब्वियसली हम बहुत ज्यादा आउटबाउंड नहीं रहते हैं अगर काफी, और आजकल आप सभी घर में ही हैं, यू नॉट गोइंग आउट ऑल्सो, तो यू माइट बी फीलिंग दैट प्रेशर. सो येस, दैट स्ट्रेस विल बी देयर, दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन. लेकिन डोंट लेट इट गो इन टू योर हेड. आई मीन, अंडरस्टैंड, मेक पीस विद इट कि हाँ स्ट्रेस होगा, थोड़ा प्रेशर होगा, थोड़ा प्रेशर होना जरूरी भी है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि स्ट्रेस की वजह से आप रीड ही नहीं कर पा रहे हो, ये लेवल नहीं जाना चाहिए. सो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक सम टाइम आउट फॉर योर सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू डू सम योगा. मॉर्निंग में सुबह उठ के थोड़ा योगा प्राणायाम कर लिया. शाम को आई यूज टू डू सम 5-10-15 minutes meditation meaning just sit down, close your eyes, listen to your breath, see how you're breathing, just calm down your thoughts, right? And when you sleep, before that, I believe जो हमारा sleeping time है
वो हमारे पूरे दिन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. इफ यू स्लीप वेल at night for 7 hours, 8 hours, you will be able to do your preparation the next day with much more energy, right? So before I used to sleep, I used to listen to some calm music, some soothing music. So I used to feel a bit calm ki chalo everything is fine and I'm not going to take much pressure. So find out those things for you, those hacks for you. क्या आपके लिए work करता है? Does music work for you? Does yoga work for you? Does talking to your friend work for you? You should have some of 3-4 things handy जो आप बहुत ज़्यादा when you get stressed up, you should be able to resort to. These things will help you, you know. And I think ये बहुत personal चीज़ है. सबका अपना अपना कुछ होगा which would make them feel light and which would give them more energy. So you have to find out that for yourself and keep doing it every day. वही मैम, अधिकतर बच्चे तो इसका अपोजिट करते हैं मुझे लगता है। मतलब जैसे अगर उनको आवर्स बढ़ाने रहते हैं स्टडी के, तो वो अपने स्लीप आवर्स में से कट डाउन करने की कोशिश करते हैं शुरुआत में, कि अगर हम नहीं, कम स्लीप सोएंगे देखो, तो। इसलिए आई ऑलवेज से कि स्लीप इज समथिंग व्हिच विल रेगुलेट द एनर्जी ऑफ योर एंटायर डे एंड स्पेशली बिकॉज आई एम सेइंग दिस क्योंकि फिजिकल वर्क अगर वो हमें करने के लिए, तो अगर कहीं बाहर जाना हो एंड ऑल, तो दैट वील डू इवन इफ वी आर लेस ऑन स्लीप. बट आवर वर्क इज रीडिंग, आवर वर्क इज understanding things, our work is remembering things. This is all things which need your mind to be relaxed and properly slept. So 7 hours बिल्कुल अलग निकाल दीजिए and बाकी का जो आपके पास टाइम है, those hours are sufficient. You can divide them and study properly. ओके मैम, आपके ट्रेनिंग पीरियड में आपका एक्सपीरियंस, योर एक्सपीरियंस एट लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। Yes, incidentally, when I'm doing this session on 25th of August 2020, complete एक year हो रहा है मुझे. This year, मतलब this day last year, I was in Missouri, and this was my first day at the academy. So this day is very special. And if I am to share my experience, it was really nice. जितना changes I experienced during UPSC preparation, those things I could really live in the academy. I met so many good people, made friends, and itself the place is very beautiful. Academy is very nice. I had a lovely time, and it really makes me go back, think that how my parents had come. सब आए थे मुझे छोड़ने के लिए, मेरा भाई, मेरे parents, all the way to Missouri, and I was going there. I had those doubts in my mind, कैसे कर पाऊंगी, how will I able to live, because I was moving out of home for the first time. लेकिन all my friends, the teachers, the faculty members, all of them made it really nice, and I had a lovely time. So definitely, if you all have a dream there, so I would say it's a lovely place, and all your hard work is definitely worth it. आपका वो वीडियो भी देखा था मैंने मैम, जिसमें 58 नंबर ऑफ विमेन कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे 2019 में। Yes, वो काफी significant इसलिए रहा है because first time in the history of the Indian civil service and administrative service, highest number of women made it to the service this time, that is 58. And so we wanted to mark that and to remind ourselves and to everyone that this is where the highest number of women got into the service. It speaks volumes about how things are changing and more women are willing to give this exam or to get into the career of civil service. तो एक काफी वेलकमिंग है ये पॉइंट, और इसीलिए वी थॉट कि हमें इसको एक थोड़ा मेमोरेबल बनाना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई वी वेंट ऑन विद द आइडिया ऑफ द वीडियो. तो मैम, आपने आपके प्रिपरेशन पीरियड में मतलब काफी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे ऐसा लगता है बैंक की फील्ड में भी चले जा सकते हैं, MPPSC कर लेते हैं, वो शायद थोड़ा इजी पड़े। मतलब तो इन सब डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड किया कि नहीं मेरा यही टारगेट है, मुझे यही करना है? और ऐसा भी होता है कि मैम शुरुआत में हम एक बुक उठाते हैं, ऐसा लगता है काफी पढ़ लेंगे, पर फिर वो एक बुक में इतने परेशान हो जाते हैं कि फिर बाकी जितना स्टडी मटेरियल रहता है वो साइड का साइड में ही रह जाता है। तो आपने सब चीजों राइट, को सो मतलब ये तो, अवॉइड किया? यस, यू आर आस्किंग 2 क्वेश्चंस, तो मैं बाइफरकेट करके आंसर करती हूँ. ओके मैम। पहली चीज तो ये है दैट आर वी फोकसिंग ऑन यूपीएससी और आर वी चूजिंग एनी अदर एग्जाम. सी, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सारे लोग, यू नो, ऑल ऑफ यू शुड बी गिविंग यूपीएससी. आई एम नॉट सेइंग दैट. आई एम जस्ट सेइंग दैट यू शुड नो कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आर यू एक्सपेक्टिंग. जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हम केवल यू नो द सर्विस एंड जो हमें चीजें दिखती हैं बाहर, हम उसी को ध्यान में रखते हैं. बट अंडरस्टैंड द लाइफ, understand the career, understand the profession which you're getting into. जॉब Um, प्रोफाइल।
the working hours which you will have to put, है ना? You will also have to see that how will your life be later on. And once you are through that, once you know that this is it, then you shouldn't switch. At least one attempt of that exam, which and when I say attempt, जब मैं attempt कहती हूँ तो मैं केवल ये नहीं कह रही हूँ कि जाके आपने एग्जाम दे दी, वो attempt नहीं है. Attempt वो है जब आप completely आपने अपना 100% उस एग्जाम को दिया है, और जब आप बाहर आते हो तो यू आर लाइक कि आई हैव गिवन माई 100%, अब जो भी रिजल्ट आता है आई विल सी. जब तक आप 100% अपना नहीं देते हैं, जब तक आप सारी चीजें पढ़ के और वट एवर एफर्ट दैट यू कैन गिव, जब तक आप नहीं देते हैं, आई वुड नॉट से, आई वुड नॉट कॉल इट एज एन अटेम्प्ट. तो एक अच्छे से अच्छा पूरा प्रिपरेशन करें उसके लिए, कीप दैट वन गोल, फिर उसके बाद स्विच ना करें. सेकेंड पार्ट विच यू आस्क्ड मी, दैट वी ओपन अ बुक एंड देन वी आर लाइक बोर्ड, कि पढ़ लिया 10 पेज 15 पेज एंड देन वी लाइक कि वी वांट टू स्विच. दिस थिंग्स हैपन. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि एक दिन में आई यूज्ड टू कीप 2 subjects, बिकॉज एक सब्जेक्ट काफी बोरिंग हो जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम रीडिंग हिस्ट्री इन द मॉर्निंग, आई रीड पॉलिटी इन द इवनिंग. एंड उसका भी बहुत एकदम रैंडम नहीं रखना है दैट चलिए आई जस्ट स्टार्ट रीडिंग हिस्ट्री टुडे. नो, हैव इन योर माइंड दैट अगर मैं मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रही हूँ या एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तो मैं कौन से चैप्टर, अगर चैप्टर बहुत बड़ा है तो मैं उसके कितने पेजेस क्या कर रही हूँ, इतना माइक्रो प्लानिंग मैं करती थी दैट 15-20 पेजेस आई एम गोइंग टू रीड टुडे. सो मेरा एक टारगेट सेट हो जाता है. एंड व्हेन आई हैव अ टारगेट, रैंडमनेस कम हो जाती है. राइट, यू डोंट, आप अपने को छोड़ते नहीं हो कि खुला कि जो मन में है, जब मूड जितना बने उतना पढ़ेंगे, वो नहीं होता है. तो हैव अ टारगेट कि कितना नंबर ऑफ पेजेस यू आर गोइंग टू रीड, एंड उतना माइक्रो प्लानिंग करेंगे तो chances are less that you will get distracted. And also have another subject in the day. Sometimes one subject is very boring to study the whole day. So if you have 2 subjects, उसमें बीच में करंट अफेयर्स पढ़ लिया, या बीच में थोड़े 5 एक सवाल लगा लिया. आजकल ऑनलाइन इतनी वेबसाइट्स हैं, उस पर दे कीप गिविंग यू डेली क्विजेज एंड ऑल. तो ब्रेक के लिए यू कैन गिव अ डेली क्विज और समथिंग लाइक दैट. ऐसे करके पूरा डे प्लान करो, दैट योर माइंड एंड यू आर इंटरेस्टेड इन दी प्रिपरेशन एंड रीडिंग. ओके मैम. मैम जैसे देर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मतलब उतने फाइनेंशियली एबल्ड नहीं रहते हैं कि वो डेली जाके कोचिंग कर सकें, या फिर वो मतलब जैसे रिसोर्सेस उनके पास इतने नहीं रहते हैं, तो उनके लिए आपकी कोई मतलब सलाह? Yes, obviously, Delhi Jana is a very big thing. It was for me also. Uh, Not only because मैं prepare, मतलब मैं college कर रही थी, but also financially. I think अगर मैं graduation के बाद भी सोचती तो I would have been thinking only कि मैं Delhi जा सकती हूँ या नहीं जा सकती हूँ. The lucky part is that now we have a lot of online resources. We have a lot of websites. We have a lot of support which is there on YouTube and other websites, जिसका हम एडवांटेज ले सकते हैं. सो यू डोंट हैव टू गो टू दिल्ली. दिस इज नॉट, मतलब ये दिमाग में मत सोचो कि दिल्ली जाके ही मैं सिलेक्ट हो पाऊंगी या हो पाऊंगा. आई वेंट टू दिल्ली फॉर माई मॉक इंटरव्यू when I was going to give the UPSC interviews. के कुछ दिनों पहले I went to Delhi to give the mock interviews. So it is possible from your home. लेकिन for that maintaining a proper plan, maintaining a proper discipline in your life, and preparing on the right track is very important. When you take a class or a coaching, what happens is you get a proper guidance. थोड़ा सा एक, they give you a direction. देखो ultimately पढ़ाई आपको ही करनी है, लेकिन they give you a little bit of direction and guidance. अगर वो direction और guidance और discipline आप खुद develop कर सकते हो, तो उससे बेहतर और कुछ भी नहीं है. सो आई वुड से राइट वेबसाइट्स जो है, और मैंने भी यूट्यूब पे आई हैव अ लॉट ऑफ वीडियोस वेयर आई हैव पुट अप की कौन से वेबसाइट्स आई हैव रेफर्ड दिस दैट. यू कैन सी देम, और पर्टिकुलर उन वेबसाइट्स को रिलीजियसली फॉलो करो, अपना खुद का भी स्ट्रैटेजी बनाओ एंड देन प्रिपेयर करो. सो इट is possible also from your hometown, wherever you are. नॉर्मली क्या